So we are, first of all, good morning to all of you and welcome to the session. Today, we are going to start a new unit, that is unit number 4. And we have to understand the basic introduction of unit number 4 topics, that is array and string. Okay. So, सबसे पहले unit number 1, 2, 3. Unit number 1, we have completed. Okay. As we have just go through the topic flowchart. What is the importance of flowchart and how we can create a flowchart. So after that, unit number 2 and unit number 3 is handling by Professor Hardik Mehta sir and Professor Dinesh Waghela sir. So I am just continue with unit number 4, that is array and string. Okay. So we are just go through unit number 4, and the title of unit number 4 is array and string. Okay. So first of all, we are just going to understand what is the concept of array. Okay. एरे को समझने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है. से फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कोई भी डेटा टाइप का यूज करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लाइक ए बी सी डी एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. सो दिस इज द syntax, or what we can say that this is the variable declaration part in a program. Okay, this is a variable declaration part. Okay, so can anyone tell me that how many variables we can declare here? How many variables? Can anyone tell me? 4. Okay, in our example here we have declared 4 variables, but what is the limitation? कितने वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक साथ? No limits. No limits. Yes, that is the correct answer. No limits. But say for example, कोई अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपको वेरिएबल, कई सारे वेरिएबल चाहिए. ठीक है. से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल लिखे, 4 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. तो से फॉर एग्जांपल अभी मैं और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. से फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें से फॉर एग्जांपल हमारे क्लास के लिए मुझे प्रोग्राम बनाना है. तो हमारे क्लास में 66 स्टूडेंट है. तो हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को अगर मुझे लेना है, एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स को मुझे लेना है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे. से फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में 66 स्टूडेंट है, तो मुझे कितने वेरिएबल लेने होंगे? 66. ओके. ये नंबर बढ़ भी सकता है. ठीक है. तो the first disadvantage of this kind of variable declaration is, as the number of variables are increasing, okay, as the number of variables are increasing, the complexity of the program will also increase. Okay. Let's we just write down the problem. Okay, then we will see the solution. Problem: as the number of variables are increasing, the complexity of the program is also increasing. Okay, so this is the first problem. What we can say that if we are just allowing this kind of variable declaration pattern, okay, then this is the problem. Okay, I'm just writing here. Okay, example. So as you will increase the number of variables, that will be a complexity generated in your program. बराबर. So जब से फॉर एग्जांपल अगर आप 66 वेरिएबल डिक्लेयर भी करते हैं, ठीक है, होंगे भी, अगर आप डिक्लेयर करना चाहें तो डिक्लेयर कर सकते हैं, बट एक सिचुएशन आएगी
कि आप 66 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सभी वेरिएबल्स को आपको याद करना होगा, ठीक है। कौन सा वेरिएबल किसके लिए है वो आपको याद रखना होगा, और किसके लिए कौन सी आप वैल्यू डालते हैं वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम हम लिखते हैं, वी कैन declare as many variables as we can, but the problem is we have to remember all the variables name and value for that will be the second problem. Okay, so what is the third problem? Okay, so जैसे हमने वेरिएबल सारे डिक्लेयर किए, तो सारे वेरिएबल को जब हमें यूज करना है तो सभी वेरिएबल को यूज करने के लिए कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर से, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, हमें कुछ एक्सप्रेशन लिखने होंगे या असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी हमें यूज करना होगा. सो दैट विल बी अ वेरी tedious task, or what we can say that will be a very complex task. Okay, so the third problem is, as we are using number of variables, the assignment operators we have to use is very large number. ठीक है, दरेक जो भी वेरिएबल आपने लिए उन सभी वेरिएबल को आपको जो वैल्यू असाइन करनी है या कोई भी कुछ भी काम अगर आपको करना है, ठीक है, तो वो सभी वेरिएबल्स के लिए आपको जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको यूज करने होंगे वो नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको यूज करने होंगे, ठीक है, प्रोग्राम. और एक अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने जितने भी वेरिएबल जो हमने लिए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हमने इतने वेरिएबल लिए, बट एक चीज यहाँ पे कॉमन है, जो सारे वेरिएबल है उनकी डेटा टाइप सेम है. क्या है? डेटा टाइप सेम है. दैट मीन्स ऑल द वेरिएबल्स आर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है, वेरिएबल्स हम जितने चाहे उतने ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज कॉमन है, हमने क्या लिया है कि भाई वेरिएबल की जो डेटा टाइप है, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू हमें इनपुट करानी है वो किस डेटा टाइप की है? इंटीजर डेटा टाइप की. ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा फाइंड करें कि भाई डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप के अगर आपको कई सारे वेरिएबल को यूज करना है, तो हम अगर कुछ ऐसा कर सके कि सारे वेरिएबल्स का एक ग्रुप रिप्रेजेंट करे, एक बैच रिप्रेजेंट करे, ठीक है, कि जिससे वो सारी वैल्यूज हमें मिल जाए, तो हमें ये जो सारे वेरिएबल हमने लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12 वेरिएबल लिए, तो 12 वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करने की बजाय अगर हम कुछ ऐसा करें कि इन सबको एक ग्रुप में डिफाइन कर दे, एक ग्रुप में डिक्लेयर कर दे और एक ग्रुप में ही सारी वैल्यू हम दे दे, तो वो एक बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग. तो इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सी प्रोग्रामिंग में नया कंसेप्ट दिया गया है, दैट इज नोन एज एरे. ठीक है, दैट इज नोन एज एरे. ओके, अभी एरे क्या है वो हम अभी डेफिनेशन में देखते हैं. ठीक है, तो लेट्स जस्ट गोइंग टू द कंसेप्ट ऑफ एरे. ओके, so we are just defining the array definition. Okay, so what is the concept of array? Okay, let's see. So if we want to just define the array in a simple word, then we can write like this: an array, sorry, an array is a collection of variables. Okay, collection of variables of same data type. Now this is the definition of array. ठीक है,
सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप देखेंगे इसमें कोई कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कुछ ऐसा नहीं लिखा है। जो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम हाईलाइट किया था, ठीक है, जो हमने प्रॉब्लम हाईलाइट किया था कि भाई एक ही डेटा टाइप है और उसके कई सारे वेरिएबल अगर हमें लेने हैं, तो इंडिविजुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की जगह हम कुछ ऐसा करें कि उसका कोई ग्रुप बना दे, जिससे उसकी डेफिनेशन और उसे यूज करने में हमें आसानी हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एरे, ठीक है। तो एरे की डेफिनेशन क्या होगी? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डेटा टाइप, ओके, ऑफ सेम डेटा टाइप, ओके। एंड अगर हम यहाँ पे एक चीज ऐड करना है तो कर सकते हैं, विद द सेम वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम एक ही होगा, बट उस वेरिएबल के नाम के थ्रू हम सभी वैल्यू सारे के सारे वैल्यू है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द array, okay, this is the definition of array, okay. And the next thing is the memory allocation for this array is continuous manner। एक चीज हमें ये यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी एरे अगर आप डिक्लेयर करेंगे, उस एरे के लिए जो भी मेमोरी एलोकेशन होगी, मेमोरी जो चाहिए, वो मेमोरी कैसे एलोकेशन होगी? कंटिन्यूअस मैनर में। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 15 MB की एक मेमोरी ब्लॉक है, 15 MB के मेमोरी के ब्लॉक को अगर हमने एक MB में या 100 KB के ब्लॉक में अगर हमने डिवाइड किया है, तो कोई एरे अगर हम लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, और उसमें अगर हम 5 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 5 वैल्यूज, तो इंटीजर डेटा टाइप की एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें 2 बाइट चाहिए, 2 बाइट, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूअस मेमोरी कितनी चाहिए होगी? 10 बाइट्स, ठीक है। 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें कितनी चाहिए? 10 बाइट्स, ठीक है। एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए 2 बाइट चाहिए अगर हमें, तो 10 मतलब 5 वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें कितनी सॉरी कितनी मेमोरी हमें चाहिए होगी? 10 बाइट्स, ठीक है। तो वो 10 बाइट्स जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। वो मतलब जो भी वैल्यू, जो भी मतलब मेमोरी एलोकेशन होगी, मेमोरी के जो ब्लॉक्स होंगे, वो मतलब नॉन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होने चाहिए, वो कंटिन्यूअस मैनर में ही होने चाहिए। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एरे, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक अबाउट एरे, ठीक है। तो एरे को फिर से अगर हम देख लें कि एरे है, एरे का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी एक से फॉर एग्जांपल अगर सेम डेटा टाइप के अलग अलग वेरिएबल जब हमें लेने होते हैं, तो उस वेरिएबल को, उस सारे वेरिएबल को हम एक ग्रुप में डिफाइन कर सकते हैं, और जो ग्रुप हम बनाते हैं उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एरे। बट द कंडीशन इज, जो भी वेरिएबल का आप ग्रुप लेंगे वो सारे के सारे वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर से फॉर एग्जांपल 4 वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप के, 4 वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप के, तो सारे वेरिएबल्स को आप एक ग्रुप में नहीं ले सकते, एक एरे में नहीं ले सकते। इंटीजर वेरिएबल्स जितने भी है उनके आपको एक अलग एरे लेना होगा, और फ्लोट डेटा टाइप के जितने भी वेरिएबल है उनके लिए आपको एक अलग से एरे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एरे को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो सिंटैक्स अगर हम देखें एरे की, ठीक है, सिंटैक्स ऑफ एन एरे। चलिए, अगर मुझे कोई एक डेटा टाइप लेना है, ऐसे फॉर एग्जांपल इंटीजर, ठीक है, इंट, और से फॉर एग्जांपल हमने ऊपर जो एग्जांपल लिया था वही हम लिखते हैं ABCDE। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन जो हम प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है। बट अगर आप देखें तो ये 5 वेरिएबल है, पांचों के 5 वेरिएबल है वो सेम डेटा टाइप के हैं, मतलब इंटीजर डेटा टाइप के ही है, ठीक है। तो इस
अब डिक्लेरेशन को अगर मुझे एरे में कन्वर्ट करना है तो एरे में कैसे हम लिखेंगे, तो भाई नाउ व्हाट वी कैन से दैट एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन कैसे होगा, सबसे पहले डेटा टाइप लिखे, तो डेटा टाइप हमारी कौन सी है, इंट है, और हमने जो वेरिएबल लिए वो कितने वेरिएबल है, 5। ठीक है, तो एक आपको नॉर्मल एरे का नाम, जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसी तरह से आप एरे का नाम लिखना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने नाम ले लिया ए। ठीक है, तो मैंने नाम ले लिया ए, तो अब उसमें हमें कितनी वैल्यू डालनी है तो वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा ए ऑफ 5, मतलब ए नाम का एरे है, इंटीजर डेटा टाइप है, और ए नाम के एरे में हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 5 वैल्यू को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर int is a data type, a is the name of an array, and 5 is the size of an array। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब उसके हिसाब से अगर हमें सिंटेक्स लिखनी है एरे की तो हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई डेटा टाइप डेटा टाइप। ठीक है, फिर डेटा टाइप के बाद क्या आएगा, एरे नेम, और एरे नेम के बाद क्या आएगा, रेक्टेंगल ब्रैकेट में साइज। तो ये हो गई हमारी सिंटैक्स एरे की। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंटैक्स एरे की। डेटा टाइप सबसे पहले लिखे, देखिए हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा है, फिर एरे नेम आएगा, तो हमने एरे का नाम दिया है ए, फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एरे की साइज को डिफाइन करेंगे, तो हमने यहाँ पे साइज कितनी ली है, 5। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंटैक्स ऑफ एन एरे। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ एन एरे। ठीक है, तो इंट है वो डेटा टाइप है, ए है वो नेम ऑफ एरे है, और 5 है वो क्या है, साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मतलब एरे की सिंटेक्स कैसे लिखते हैं और एरे को कैसे यूज करते हैं वो हमने एग्जांपल में ले लिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ एन एरे, वो हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। ठीक, नीड ऑफ एन एरे। ठीक है, तो नीड ऑफ हम लिस्ट आउट करते जाए। ठीक है, ओके, एरे इज रिक्वायर्ड because of the following requirement। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट है। स्टोर एरे, इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, सबसे पहला एडवांटेज, मल्टीपल वैल्यूज विथ सेम नेम। ठीक है, अगर आपने एक प्रोग्राम किया होगा सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट मार्क्स के लिए, तो मैंने बोला था कि भाई से फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट के अगर हमें मार्क लेने, तो चारों के चारों सब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग डिक्लेरेशन करना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 4 सब्जेक्ट के मार्क चाहिए तो 4 की साइज का एक एरे ले लीजिए, उस एरे का नाम सेम वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विथ सेम। सेकेंड, स्टोर, it can store multiple values with same data type। ठीक है, डेटा टाइप जो भी वेरिएबल सेम डेटा टाइप का होगा उसे हम ग्रुप कर सकते हैं और उसका हम एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विथ सेम डेटा टाइप, एंड द एक्सेस of the values stored in an array
is very easy. ओके, सो अगर एरे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की है, ठीक है, तो अगर उसे हमें एक्सेस करना है, सो इट कैन बी वेरी इजी, ठीक है। तो ये हो गई नीड ऑफ एन एरे, सिंपल टर्म है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नीड ऑफ एन एरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं एरे का, कैसे अगर हम एरे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने 5 वेरिएबल लिए ए बी सी डी ई इंटीजर के, फिर मैं फ्लोट लेता हूं, फ्लोट ए बी सी डी बी सी डी ई। सी लैंग्वेज में केस सेंसिटिव है तो हमने पहले देखा था, ठीक है। फिर एक डेटा टाइप आती है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए हम ऐसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि भाई C1 C2 C3 C4 एंड C, ठीक है। अगर इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस तरह से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इन सब के लिए आपको अलग अलग एरे डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीजर को अगर हमें एरे में कन्वर्ट करना है तो डेटा टाइप सेम रहेगी इंट, और एरे का नाम आपको ले लेना होगा कोई भी आप नाम जो लेना चाहे, जैसे हम वेरिएबल का नाम लेते हैं, ठीक है। तो ए और उसकी साइज क्या हो जाएगी 5। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का है। तो अगर आप फ्लोट डेटा टाइप के जितने भी वेरिएबल है उनको एरे में कन्वर्ट करना चाहे तो आपको ऐसे लेना होगा, फ्लोट से फॉर एग्जांपल कैपिटल है उनकी साइज भी आप ले लेते हैं 5, ठीक है। और कैरेक्टर से फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है तो उसको भी अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कैर सी और ब्रैकेट में 5, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक एग्जांपल के कैसे जो नॉर्मल वेरिएबल्स है उनको हम एरे में ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लिस्ट आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले हम लिस्ट आउट करते जाए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने सिंटेक्स देखी थी उसी के ऊपर से है, एन एरे कैन स्टोर ओनली सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। ये तो हमने ऊपर ही देखी, ठीक है। कोई भी अगर आप एरे लेते हैं तो वो एरे है किस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, सिमिलर डेटा टाइप। मतलब इंटीजर का अगर आपने एरे लिया है और उसमें आप अगर फ्लोट की डेटा टाइप की वैल्यू डालेंगे तो वो नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। सो अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप का एरे लिया है तो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, किसी और डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। देन एन एरे इज a subscripted variable which holds several elements at a time, ठीक। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट हम किसे बोलेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे अगर हमने सिंटेक्स लिखा है, देखिए सिंटेक्स में हमने यहाँ पे एग्जांपल में हमने क्या लिया है, a इंटू द ब्रैकेट 5। तो ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ एन एरे। तो ये जो साइज ऑफ एन एरे को डिफाइन करने के लिए हम जो नंबर लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखते हैं उसे बोला जाता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट एरे के अंदर सबस्क्रिप्ट और सिंपल स्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, एन एरे इज अ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल व्हिच होल्ड सेवरल एलिमेंट्स एट अ टाइम।
तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का नाम क्या है a और उसकी साइज क्या है 5। तो ये जो एरे का नाम है a वो कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है। देन यूजिंग द सबस्क्रिप्ट variable name, random elements can be referred, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेना होगा। से फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे लिया इंटीजर a और 5, ठीक है। तो ये जो हमने 5 वेरिएबल मतलब साइज हमने जो दे दी है 5, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर वो रिप्रेजेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है सबस्क्रिप्ट, हमेशा एक बात याद रखिए, एरे में जब भी कोई आप एरे बनाते हैं उसकी सबस्क्रिप्ट स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो कंपाइलर उसे कैसे देखेगा, अगर आपने प्रोग्राम में लिखा है इंट a ऑफ 5, तो कंपाइलर उसे कैसे देखेगा, सबसे पहले a ऑफ 0 लेगा, उसके बाद a ऑफ 1 लेगा, उसके बाद a ऑफ 2 लेगा, उसके बाद a ऑफ 3 लेगा और उसके बाद a ऑफ 4, ठीक है। तो ये कंपाइलर, ये जो हमने एरे डिक्लेयर किया है a ऑफ 5, कंपाइलर उसे इस तरह से देखेगा, a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4। सबके अंदर आप जितने जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखी है कि यूजिंग द सबस्क्रिप्ट वेरिएबल नेम रैंडम एलिमेंट्स कैन बी रिफर्ड। रैंडम एलिमेंट्स मतलब अगर हमने a ऑफ 5 के अंदर अगर हमें देखना है कि a ऑफ 2 दैट इज थर्ड वैल्यू एरे के अंदर कौन सी है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a ऑफ 2। तो a ऑफ 2 के पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी नेक्स्ट जो हमने आगे देखा था वही फॉर एरे कंटिन्यूअस मेमोरी इज एलोकेटेड, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एरे जब भी आप डिक्लेयर करते हैं तो उसकी मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ऑलवेज द एरे नेम, जो हम एरे नेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ऊपर हमने लिया था ए, ठीक है। एरे नेम इज फॉलोड बाय सर्कुलर angular bracket, okay, which tells the compiler that we are dealing with an array, ठीक है। जब भी हम एरे नाम के साथ जब हम एंगुलर ब्रैकेट अगर हम लेते हैं, ये ब्रैकेट हम जो एरे का है, ठीक है, तो अगर वो ब्रैकेट हम यूज करते हैं तो वो कंपाइलर को इंडिकेशन देगा कि हम एरे का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमने डेफिनेशन में लिखा था वही है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ the same data type will, ठीक है। Then the first element in the array is numbered 0, जो हमने आगे देखा यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन से सबस्क्रिप्ट के साथ एक्सेस किया जाएगा, 0, ठीक है। So the first element in the array is numbered 0. So the last element is less than 1 of the size, ठीक है। सिंपल है। अगर हमने यहाँ पे देखे कि हमने एरे है वो कितनी साइज का लिया है, 5 का, ठीक है। तो अगर आप जब भी उसे नंबर देखेंगे तो लास्ट का जो वैल्यू आएगा वो कैसे होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 साइज है तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी, 4, दैट इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये सभी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एरे की है जो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जब भी
ये एक क्वेश्चन के तौर पे अगर आप इसे देखेंगे तो क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है कि भाई राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। ओके, सो ये हो गई हमारी एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक बेसिक एग्जांपल जो एरे के साथ हम यूज कर सकते हैं। ऐसा हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं जो हमें प्रोग्राम के थ्रू हम यूज कर सके। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे एग्जांपल ऑफ एन एरे। ठीक है, सबसे पहले हम जो लिखते हैं वही लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको हम लिखते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम हम लिखे वो देखते हैं। अ, चलिए, अगर मुझे सिंपल एरे का यूज करके लिखना है तो से फॉर एग्जांपल हम वैल्यू ऐड कराते हैं और उसे डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन हम लिखेंगे void main। वर्ड में लिख रहा हूँ इसीलिए कैपिटल हो जाता है, आपको प्रोग्राम में जो लिखते हैं लिखना है। ठीक है, एक एरे ले लेते हैं int a of 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रोग्राम हम क्या लिख रहे हैं, यूजर के पास से हम 5 वैल्यू एरे की एंटर कराएंगे और उसे हम मतलब क्या कहेंगे, उसे हम एक्सेस कराएंगे। ठीक है, उसे हम जस्ट डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है कि जिससे हम यूजर के पास से वैल्यू एंटर कराए और उसी वैल्यू को हमें देखना है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फोर लूप। अगर फोर लूप अगर आप सब ने सीख लिया है, आई थिंक सेकंड और थर्ड यूनिट में आता है, तो फोर लूप का मैं यूज कर रहा हूँ। फोर int I is equal to 0, I less than 5। हमें लूप कहां तक चलाना होगा, 5 तक, क्योंकि हमने हमारे जो एरे की साइज है वो 5 है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमें कहां तक जाना है, 4 तक। ठीक है, तो I लेस देन 5, जब तक 5 से I की वैल्यू 5 से लेस देन होगी तब ये लूप चलेगा। ठीक है, और उसे हम एक एक इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, I प्लस प्लस, तो उस पे हमें क्या लिखवाना है, printf उसके ऊपर हम लिख देते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं सेम printf एंटर 5 वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे लिख दे और यहाँ पे डायरेक्टली हम स्कैनफ लिखते हैं, स्कैनफ परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी आएगा, इंटीजर हमने लिया है इसलिए। और यहाँ पे आएगा M%, एरे का नाम हमने लिया है ए और वेरिएबल हमने लिया है आई। ठीक है, फोर लूप में आई, एरे ऑफ आई। तो यहाँ पे हम वैल्यू को एंटर कराते हैं यूजर के पास से, एक साथ 5 वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो देन उसी वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट कराना है। ठीक है, तो हम सिंपल लिखेंगे सबसे पहले printf the values entered by the user are। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें एक फॉर लूप रन कराना होगा, int
j is equal to 0, j less than 5, j plus plus, जो सेम कंडीशन हमने दी है वही कंडीशन हमें लिखनी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिंट एफ कराना है, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज मतलब वैल्यूज ऑफ ए ऑफ, देन हम लिखेंगे परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और जो सबसे पहली ब्रैकेट में हमने ली है वो आएगी जे और सेकंड आएगी ए ऑफ जे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट सी एच, और ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा एरे का प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने एरे डिक्लेरेशन किया है और यहाँ पे मुझे डबल कोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है वो हम क्या लेते हैं, फॉर लूप फॉर वैल्यू एंटर बाय द यूजर, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर लूप है वो क्या है, फॉर लूप टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है। एरे के अंदर जो भी हमने वैल्यू दी है उस वैल्यू को हम यहाँ पे मतलब डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जिसे हम बोल सकते हैं कि भाई एरे का सिंपल एग्जाम्पल हो गया, जिसमें हमने दिखा है एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है, एरे के यूज से यूजर के पास से वैल्यू कैसे एंटर करवाई जाती है, और सेम एरे के यूज से उसी एरे की वैल्यू को कैसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक एग्जांपल ऑफ एन एरे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, आज का सेशन, जिसमें हमने सीखा कि भाई एरे क्या है, एरे की रिक्वायरमेंट क्या है, एरे की डेफिनेशन क्या है, और एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। और उसके बाद एरे की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में एरे की रिक्वायरमेंट क्या है, एरे को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। और एक बेसिक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि भाई एरे को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस सेशन? नो सर। ओके, अगर नो सर। किसी भी जगह पे किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir.